Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we studied about the progressive and recreationary nationalism. In that we studied certain objective side and all when for कुछ recreationary के लिए reasons क्या चाहिए and all we studied in the last lecture. And we started the just the introduction part of the rise and growth of nationalism. इसका हमने सिर्फ introduction part पढ़ा था. Now we'll study the nation state in Europe. As stated above, the nation state was the product of combined influence of Reformation, Renaissance and commercial revolution. See, as stated above क्या है, ये जो nation state है, it was the product of combined influence of Reformation, Renaissance and commercial revolution. The decline in the authority of the church raised the question of loyalty of the individual, and by withdrawing this loyalty from the Holy Roman Empire, gave it to the monarchy who was emerging as the symbol and sole representative of the nation itself. ऐसी ये क्या है यहाँ पे द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च. अभी क्या हो गया, रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ तो क्या हुआ, पहले सब चर्च के हाथ में था सब कुछ. अब क्या हो गया, अथॉरिटी चर्च के पास से ले ली गई थी, तो फिर अभी बहुत से लॉयल्टी पे क्वेश्चन रेस हो गए. और फिर जो होली रोमन एम्पायर थे उसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन आ गए थे. तो गेव इट टू द मोनार्ची हु वाज एमर्जिंग एज अ, और फिर रोमन एम्पायर में क्या हो गया, उन्होंने सारे पावर मोनार्ची को दे दिए. और मोनार्ची वाज एन एमर्जिंग द सिंबल, और वो हु वाज एन एमर्जिंग एज द सिंबल एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन इटसेल्फ. दिस मोनार्चीज tended to consolidate their power in areas united by an common vernacular, religious culture, etc. See, these monarchies tended to consolidate their power in area जहाँ पे कॉमन वर्नाकुलर कल्चर एक्सेट्रा सब कॉमन था, वहाँ पे अभी मोनार्ची आ गया है. Thus, nationality began to form into a state which represented them. Thus यहाँ पे क्या हो गया, nationality began to form into a state. Nationality क्या हो गया, it began to form into a state which represented them. As a result, a new principle was introduced in the concept of nation state. As a result क्या हो गया, एक नया principle आ गया, हाँ, in the concept of nation state. This concept rejected the Holy Roman Empire and supported the formation of states on the basis of nationality. See, this concept क्या हो गया, rejected the Holy Roman Empire. This concept rejected the Holy Roman Empire and supported the formation of state. और support किसको किया, formation of state को support किया on the basis of nationality. Loyalty to the nation represented by king began to emerge and exert powerful influence. Loyalty to the nation represented by a king, जो king represent करता था, it started emerging and exerted a powerful influence, और बहुत ज़्यादा influence डाला यहाँ पे. The English, French, Spanish and German nationalists were mere even before, but bond had been religious. See, यहाँ पे क्या हो गया, अभी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन नेशनलिज्म वे मियर इवन बिफोर, पहले सारा एक साथ अच्छे से रहते थे, बट अब क्या हो गया है, अब वो लोग सिर्फ रिलीजन की वजह से एक उनमें बॉन्ड है. द ब्रेकिंग ऑफ चर्च पावर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल चर्च वाइडर द अथॉरिटी ऑफ द पावर पेव्ड द वे फॉर द नेशन स्टेट. सी, द ब्रेकिंग ऑफ चर्च पावर एंड यहाँ पे चर्च के पास से सारी पावर ले ली और एक क्या हो गया, और एक नेशनल चर्च एस्टेब्लिश किया और उनको थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी. एंड इवन द किंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द स्टेट, फॉर द नेशन एंड द स्टेट. द टास्क वॉज इनिशिएटेड बाय इंग्लैंड एंड वॉज फॉलोड बाय फ्रेंच. अब ये टास्क किसने लिया था, लाइक चर्च के पास से सारी पावर ले ली और फिर क्या है, एक चर्च को नेशनल चर्च बना दिया और उधर किंग वगैरह रहेंगे एंड द किंग हैड द अथॉरिटी. ये सबसे पहले किधर हुआ, इट वॉज इनिशिएटेड बाय इंग्लैंड एंड देन इट वॉज फॉलोड बाय द फ्रांस. Henry VII and Philip II were absolute monarchy who destroyed federalist and the
multiplicity of authority in society and established strong centralized state. See, अब क्या हो गया, हेनरी 7 एंड फिलिप्स 2, what happened here, वेयर ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्ची, इनके पास क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्ची, जो उन्होंने डिस्ट्रॉयड कर दिया था, और क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी इन सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट। और उन्होंने क्या किया था, ये एब्सोल्यूट मोनार्ची डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट बना दिया। थस this remerged a separate and independent national identity presented by a powerful king. Thus, this re-emerged, अब क्या हो गया, वापस re-emerged हो गया, एक separate और independent nation आ गया and it represented by a powerful king. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब powerful king के हाथ में क्या हो गया, एक नया state आ गया, right? powerful king के हाथ में कहाँ पे दिया अपन, thus there re-emerged a separate and independent national identity represented by a powerful king. See, अब एक separate और independent nation आ गया है और उसकी आइडेंटिटी सब किससे है, एक किंग से है। लाइक किंग कितना पावरफुल है और कैसे काम करता है उस पे है। दिस स्टेट फ्रीड द इंडिविजुअल फ्रॉम द डुअल लॉयल्टी ऑफ द चर्च एंड द स्टेट। अब स्टेट क्या हो गया, अब स्टेट फ्री हो गया, लाइक दो दो तीन तीन किंग रहने के बदले क्या है, एक ही किंग है और वो पूरे इस पे रूल करेगा अच्छे से। और इनफैक्ट वो चर्च से भी फ्री हो गए लोग उस वक्त। पहले क्या था, चर्च में जो बोलेंगे वही करना पड़ता था। अब क्या हो गया, लोग यहाँ पे चर्च से भी उनका नाउ दे डोंट फॉलो व्हाट द प्रीस्ट से इन द चर्च एंड ऑल, या फिर पॉप। ड्यूरिंग दिस फ्रेज nation state meant the submission of the individual to the king representing the nationality of the ruled. See, उस फ्रेज में क्या हो गया, नेशन स्टेट मीन्स द सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल। लाइक अब जो भी वहाँ पे लोग रहते थे, दे शुड सबमिट देमसेल्फ टू द किंग, राइट, ताकि किंग अच्छे से आप सबको रिप्रेजेंट करे, अच्छे से रूल भी कर सकता है वो, और क्या है, अपना कंट्री भी प्रोटेक्ट कर सकता है। सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द किंग यानी क्या, कि बाबा जो भी किंग बोले, जैसा बोले वैसा आपको करना है, दैट्स इट। दिस पीरियड वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ न्यू डेवलपमेंट दैट इज कॉलोनिज्म। सी, उसी पीरियड में क्या हो गया, एक नया डेवलपमेंट हुआ। वो नया डेवलपमेंट क्या था, इट वाज जस्ट अ कॉलोनिज्म। इट स्प्रेड बोथ इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डायरेक्शंस, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका। सी, this period was also characterized by a new development that is colonism and it spreaded in both eastern and western direction. और ये कहाँ पे spread हुआ, it spreaded both in eastern and western directions, that is Asia and America. The great discoverers were the achievement of adventurous individuals supported by king who in turn expected financial gains. The great discoverers were क्या था, अब डिस्कवरी उस वक्त क्या था, अचीवमेंट ऑफ एडवेंचरस इंडिविजुअल, कोई नया अचीवमेंट करता था, नया कुछ लाता था तो क्या करता था, किंग सपोर्ट करता था। तो अगर किंग को पसंद आया, किंग ने सपोर्ट किया, आपका अच्छा हो गया, तो क्या है, आपको किंग थोड़ा सा फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा। द इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द नेशन स्टेट टू मैक्सिमाइज कॉलोनीज लीड टू फर्दर सेंट्रलाइजेशन एंड solidarity within the nation and intensification of the spirit of nationalism. See, अभी क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है among the nation state, ये सारा क्या है, नए नए कॉलोनीज वगैरह आ रहे हैं, तो एवरीथिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड सो दैट यू कैन हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, राइट। अगर सब कुछ सेंट्रलाइज रहेगा तो आप सब कुछ अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, एंड इससे क्या होगा, और हर किसी में फिर वो नेशनलिज्म का स्पिरिट जगेगा, राइट, एवरीवन विल हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। द न्यू कॉलोनीज वेर नॉट इंटेंडेड टू बी टेरिटोरियल सब्जेक्टेड और रूल फ्रॉम अब्रॉड बट वेर टू सर्व एज सेंटर ऑफ कॉमर्स इन द इनिशियल फेज एंड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट इट इन द era ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो न्यू कॉलोनीज क्या है,
The new colonies were not intended to be territorially subjected or ruled from abroad. ये जो नए कॉलोनी है वो क्या है, वो कोई अब्रॉड से रूल करना पॉसिबल तो था, बट क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो क्या है, एक सेंटर ऑफ कॉमर्स बना दिया उन्होंने, जहाँ से क्या है अभी न्यू कॉलोनीज आए, अभी उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना जो रूल कर रहा है उन पर। तो क्या कर दिया उन्होंने, एक सेंटर ऑफ कॉमर्स बना दिया ताकि रॉ मटेरियल, मार्केट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब कुछ वहाँ से उनको मिल सके, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके कंट्री में हो, जो रूल कर रहा है उसके कंट्री में। एग्जाम्पल ब्रिटिश एंड इंडिया, राइट। सारा रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, बराबर ना, रॉ मटेरियल सारा इंडिया से जाता था, और वहाँ पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था। द स्ट्रगल बिटवीन द किंग एंड द कैपिटलिस्ट क्लास वॉज रिसॉल्व थ्रू डेमोक्रेसी। अभी ये स्ट्रगल बिटवीन किंग एंड कैपिटलिस्ट क्लास क्या था, इट वॉज, वो कैसे सॉल्व हुआ, टू द डेमोक्रेसी। This gave a new meaning to the nation state. Now, nation state meant not loyalty but the king, by the king, but to the government which gave freedom, which consulted the people and placed real authority in their hands. See, अब क्या हो गया, अभी सही मायने में नेशन स्टेट कब हो गया, जब किंग से हाथ से ले लिया सब कुछ, राइट, जो रूल कर रहा था उसके हाथ से भी ले लिया सब कुछ, और अभी फ्रीली अब गवर्नमेंट आपको जैसा चलाना, आपको आज़ादी दे दी गई है, लाइक हमारे गवर्नमेंट से सबसे आपको आज़ादी दे दी है। आपका कंट्री, आपका स्टेट, आपका नेशन, आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाओ, सारी अथॉरिटी आपको दे दी है। नेशनलिज्म वॉज मीनिंगलेस अनलेस इट एम्बॉडीड लिबर्टी फॉर द पीपल। सी, नेशनलिज्म ये मीनिंगलेस रहता था अगर लोगों को अपन हर चीज़ की लिबर्टी नहीं देते थे तो। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a representative institution gave a new solid base of the ideology of nationalism. See, the establishment of the representative institution, it gave a new solid base to the ideology of nationalism. The French Revolution in the far end of the 18th century was a turning point in the rise and growth of the nation state. See, the French Revolution जो था, it was the far end of the 19th century and was the turning point in the rise and growth of the nation state. Hence, the stage shifted to Central Europe. फिर ये जो स्टेज था वो धीरे धीरे shifted to the Central Europe. The declaration of the National Assembly, rights of mall, location of sovereignty in the nation, abolition of federal legacy, confiscation of the church property to meet the national debt, formation of the national education policy, the national flag, the national anthem, and the war fought for the glory of nation. All these things led to nationalism in France to its pinnacle. See, अब क्या हो गया, अभी फ्रांस और यूरोप में क्या हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो सब कुछ चेंज वगैरह हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी हर कोई अपना नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने लगे, राइट। देन फिर कुछ कुछ सिस्टम अबॉलिश करना ज़रूरी है उसके बारे में बात करने लगे। फिर चर्च की प्रॉपर्टी, अगर चर्च ने के बहुत किसी से ले इफ़ हैड टेकन लोन फ्रॉम समवन, तो वो चर्च की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और चर्च की प्रॉपर्टी यानी क्या, ये गवर्नमेंट के अंडर आ गई, लाइक किसी की प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी बन के नहीं रह गई। देन अपनी एजुकेशन पॉलिसी ने नेशन की एजुकेशन पॉलिसी, देन नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और वॉर अपन फाइट करते हैं ताकि अपना अपन नेशन अच्छे से चला सके। ऑल दिस थिंग्स लेड टू द नेशनलिज्म इन फ्रांस to its pinnacle. In 1792, when Napoleon Bonaparte began the national revolutionary struggle, national consciousness was almost absent in Europe. See, in 1792 क्या है, जब नेपोलियन ने क्या हुआ, he started the national revolutionary struggle, national consciousness was almost absent in Europe. National consciousness क्या था, it was absent in Europe. But as the nation war increased and a large portion of Belgium, Netherlands, German and Italy came under French occupation. अब क्या हो गया, अब बहुत से कंट्रीज जो है पार्ट था यूरोप का। नेपोलियन ने क्या बोला था, जब उसने नेशनलिज्म का कंसेप्ट वगैरह इंट्रोड्यूस किया था, क्या था, तब कोई भी यूरोप में इसके बारे में अवेयर नहीं था, राइट, नो वन वॉज अवेयर ऑफ इट। सो देयर वॉज एन, तो
एक जर्मन में एक नेशनलिस्ट आया और क्या हुआ, नहीं यहाँ पे मिस समथिंग, सी अब क्या हो गया, द नेशनल्स वॉर इंक्रीज, और क्या है, बहुत एक लार्ज पोर्शन ऑफ बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मन एंड इटली, इट वेंट अंडर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन, और it led to a reaction which found expression in nationalism. There was an upsprung in German nationalism. The defeat of Germany in 1806 made Fichte and Hegel strident enemies of France and ardent supporter of German nationalism. See, the अभी जर्मन डिफीट हो गया इन 1806, इट वॉज क्या है, फिchte एंड हीगल, दे बिकेम एनिमीज ऑफ फ्रांस and they supported the German nationalism. It led to the belief that politics cannot be ignored at cost of philosophy. तब लोगों को पता चला वहाँ पे कि पॉलिटिक्स क्या है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. The Napoleonic War helped immensely in awakening the national consciousness of the German state. See, the Napoleonic War जो हुआ था, it was an awakening of the national consciousness in the German state. The German state wanted to stand at an equal level with France and England. अब जर्मन को क्या चाहिए था, जो फ्रांस और इंग्लैंड की पोजीशन थी उनके बराबर की पोजीशन चाहिए थी जर्मन को. तो फिची held the view that economic process was the basic of political unity and this could be achieved only through state socialism. See, फिची हेल्ड द व्यू दैट, फिची ने व्यू क्या डाला, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या था, इट वाज द बेस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड इट कैन बी ओनली अचीव्ड थ्रू socialism. The concept of nation as propounded by Hegel, the state socialism of Lassalle and Bismarck had its root in Fichte. See, the concept of nation as propounded, ये जो कंसेप्ट ऑफ नेशन है जो हेडगे ने बोला है, इससे अपने को क्या पता चलता है, द स्टेट सोशलिज्म ऑफ लासे एंड बेस्मार्क हैड इट्स रूट इन फिchte. इन जर्मन द नेशनल स्टेट was not only a political theory but emerged as a philosophy of life. See, सिर्फ ये पॉलिटिकल theory एक theory के नाम पे नहीं थी, उन्होंने अपने लाइफ में भी यूज़ करना चालू किया. हेगल combined the state with the will of the nation. What Hegel did? Hegel combined the state with the will of the nation. He called the state as a march of God on earth, and by giving a mythical base to the nation, justified an absolute state which was misused by Nazism in the 20th century in the name of National Socialism. See, he called the state as a march of God on earth, and by giving a mythical base, और उनको एक प्रॉपर बेस दिया जिससे क्या पता चलता है, एब्सोल्यूट स्टेट एक बना दिया. जब नाजी गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके पूरा स्टेट खराब कर दिया था, लाइक सिर्फ उनका राज चलेगा, जो उसको सही लगेगा वही करेगा नाजिज्म. द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप डिड नॉट नेम ऑफ सोशल the formation of nation state in Eastern Europe did not take place under a centralized authority. See, the formation of nation state in Eastern Europe, it did not take place in the central authority. Right from the beginning, due to the lack of any political organization to spread national consciousness, these states were under three empires: Habsburg, Ottoman and Asia. See, right, पहले से ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं था, लोगों में नेशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो ये जो 3 स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स इन तीनों 3 एम्पायर के अंदर थे, दैट इज हैब्सबर्ग, ऑटनम एंड एशिया. ऑल दिस एम्पायर्स वर अनएबल टू इनकैलकुलेट एनी नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग द पॉपुलेशन. सी, ये जो तीनों एम्पायर थे वो लोगों में नेशनल सेंटिमेंट डाल ही नहीं पा रहे थे. In the 19th century, socio-economic changes in the rest of Europe had their repercussion on the eastern part as well. See, in the 19th century क्या हुआ, socio-economic changes, और क्या हुआ in the rest of the Europe, इसमें क्या हो गया, ईस्टर्न पार्ट में भी चेंजेस आने लग गए. Various segments of the population
began to feel that from the point of view of nationality, they were not only different from the king, but that the oppressive nature of rule was also not tolerable. See, अब क्या बोला है, वेरियस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. सी, बहुत सा पॉपुलेशन में एक फीलिंग आने लग गया नेशनलिटी का, और वो किंग से डिफरेंट नहीं है, बट उनको जो रूल कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, वो भी टॉलरेबल नहीं था. द theory of self-determination of nationalists was welcomed by these people because this could help them rid themselves of autocratic regime. See, the theory of self-determination of nationalists was welcomed by these people. क्यों? Because इससे क्या होता है, मदद मिलेगी. Hence, the struggle to get rid of oppressive rule started in the 19th century and continued in the 20th century. Hence, जो struggle है, it gave right to an oppressive rule which started in 19th century and continued in the 20th century. During the First World War, a major question was of the new nationalists which wanted to form new states of its own. See, during the First World War क्या है, बहुत से स्टेट में क्या थे, नया क्वेश्चन था कि बाबा हमको नया स्टेट बनाना है और हमारा खुद का चाहिए. द वॉर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द नेशन स्टेट. सी, वॉर क्या हुआ, इन फेवर ऑफ द नेशन स्टेट हुआ. द मैप ऑफ यूरोप वॉज रीड्रॉन. अब मैप ऑफ यूरोप भी वापस उन्होंने ड्रॉ किया. द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड द ऑटोनम एम्पायर वेर ब्रोकन. अभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एक एम्पायर था और ऑटोनम एम्पायर था, यह पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है. न्यू 5 स्टेट्स वेर देयर नाउ. अब नए 5 स्टेट्स आ गए. कौन सा था? पोलैंड, ज़ुकोस्लोविया, लुथेनिया, इस्टोनिया एंड फिनलैंड. 6 न्यू स्टेट्स वेर एक्सटेंडेड. और 6 नए स्टेट को बढ़ा दिया था. क्या 6 नए स्टेट्स क्या थे? यूगोस्लाविया, रोमेनिया, ग्रीस, इटली, डेनमार्क एंड फ्रांस. The Australian, Hungarian and Turkish Empire were prognoform state based upon nationalities. See, the Australian, Hungarian, Turkish Empire, ये क्या थे? They were the based on nationalities. The Treaty of Paris accepted the principle of nationality as a pan of universal law. See, the Treaty of Paris क्या हो गया? It is accepted the principle of nationalities as a pan universal law Europe. The First World War recommended the idea of self-determination of the nationality to be extended to Asia and Africa. See, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनलिटी, आप नेशन को भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, ये सारा एशिया और अफ्रीका तक भी पहुंच गया. देन नेशन स्टेट्स इन अमेरिका. While in Europe, the nation state meant a unified state on the basis of mutual freedom and its defense. It meant something different in America. See, यूरोप में क्या है, नेशन स्टेट सब अलग अलग बन रहा था, म्यूचुअल फ्रीडम चाहिए, डिफेंस चाहिए, बट अमेरिका में कुछ और चल रहा था. द अमेरिकन कॉलोनीज फेल्ट दैट ऑल दिस एफर्ट्स एंड कॉन्टेस्ट हैड लेड टू द रिचेस्ट ऑफ द होम कंट्रीज. सी, अमेरिकन कॉलोनीज क्या हुआ, उनके जो एफर्ट्स है ये सारे क्या है, अपनी कंट्री को रिच बनाने के लिए है. When they became conscious that they were not working for themselves but for the benefit of those who had never left their comfortable home, they revolted. See, अब जब उनको कॉन्शियसनेस आ गया कि बाबा ये लोग सिर्फ अपने हित के लिए काम नहीं कर रहे, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे, बट वो उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने घर में कंफर्टेबली बैठ सके, तब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ. द फर्स्ट स्लोगन वॉज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट स्लोगन क्या था उनका? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विच सब्सिक्वेंटली चेंज्ड इनटू फुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड नेशनल आइडेंटिटी. अब क्या हो गया, इसकी वजह से, सब स्लोगन्स की वजह से क्या हो गया, वॉर फॉर इंडिपेंडेंस चालू हो गया और नए नए स्टेट बने और हर किसी की एक नेशनल आइडेंटिटी बन गई. आउट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन national feeling and liberty and self-interest, they were forced to serve old bonds and create new ones. See, out of the contradiction between national feeling and liberty and self-interest, they were forced to serve old bonds and create new ones.
उनको ओल्ड बॉन्ड्स ये करने थे और नए बॉन्ड्स बनाने थे. Hence, the nation state meant serving old national bonds. Hence, the nation state meant serving old nation bonds and creating new ones. क्या है, अभी नए नए बॉन्ड बन गए और न्यू स्टेट्स आ गए. This ended the colonial rule and the creation of many nation states in the American continents. See, this ended the colonial rule. अब colonial rule खत्म हो गया और नए नए नेशंस बन गए और एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट बन गया. Now, anti-colonial nationalism. In the 20th century, the period between the two world wars, the Russia Revolution and the rise of fascism, were important landmarks in the spread of nationalist idea from Europe to the non-European land of Asia, Africa and Latin America collectively. They set in motion the progress of national liberalization movement in Asia and Africa, as a result of which many countries got independence from the imperialistic power of Europe. अब यहाँ पे क्या हो गया, इन द 20th सेंचुरी क्या हो गया, टू वॉर हुए. एक तो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और एक फासिज्म हुआ, राइट. अब इन दोनों के यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा था फ्रॉम यूरोप टू नॉन यूरोपियन लैंड. और इन सब में क्या हुआ, एक नेशनलिस्ट की आइडिया आई. और फिर ये आइडिया कहाँ पे स्प्रेड हुई, पहले यूरोप के लोगों में आई, फिर नॉन यूरोपियन लैंड्स में स्प्रेड हुई, लाइक एशिया, अफ्रीका, अमेरिका. और क्या हुआ, और फिर एशिया अफ्रीका में लोगों ने लिबर्टी नेशनल मूवमेंट के लिए स्ट्रगल करना चालू किया. एंड फाइनली ऑल दिस कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूरोप. सच रिवॉल्यूशनरी चेंजेस played an important role in developing a new form of nationalism. New nations like China, India, Pakistan, Egypt, Vietnam grew on the world scene, which gave a new meaning to the concept of nationalism. फिर see, now what happened here? नए नए नेशंस आए, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इजिप्ट, वियतनाम. और वर्ल्ड पे इन्होंने अपना भी एक नक्शा बना लिया एंड इन्होंने नेशनलिज्म को एक न्यू कंसेप्ट दिया. द सर्कमस्टेंसेस which gave birth to this nation were quite different from those of the west. See, circumstances जो हुए यहाँ पे it gave birth to the nation which were quite different from that of the west. These were the countries which were subjugated by imperialistic countries like England, Spain, Holland, etc. and their economies had been exploited. अभी इन सबको आज़ादी मिली, कौन सी कंट्री से मिली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, इन सब से आज़ादी मिली. और इन कंट्रीज़ ने बाकी दूसरी कंट्रियों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था. imperialistic countries considered them their private property which they sold and welfared. They destroyed their independence and preserved puppet government which were too weak to form any harm to imperialism. अब इंडिया में ही देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने अपनी आज़ादी पूरी छीन ली थी और जो अपना गवर्नमेंट था उसको उन्होंने पपेट बना दिया था. और वो अपना गवर्नमेंट इतना वीक था कि वो ब्रिटिश का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे, राइट. So this was the anti-colonial nationalism. So we'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll start with the new topic, that is the rise of Indian nationalism. अभी इंडिया में nationalism कैसे आया? It went through a certain stages, right? Like 5th stage, 5 stages है. Then factors awakening and spreading of nationalist consciousness, फिर press, transportation, all this we are going to study in the next topic in our next lecture. Read the topic well. If you have any doubt, mail it to my mail ID. Thank you.